ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں سانپ کے ساتھ کیوں دفن کر دیا گیا؟ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس سے اتنی دردناک عذاب نازل ہوا؟ آخر یہ حافظ قرآن ہو کر بھی کون سی غلطی کر رہی تھی؟ تو دوستوں، اس گناہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے۔ تیز بارش ہو رہی تھی، اماں سکینہ کا ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی سبرا؟ واپس آ، خدا کے لیے 6 بج چکے ہیں، مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں سکینہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی تیز بارش میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں نے کہا بارش رکنے دو، پھر چلی جانا۔ اماں سکینہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی۔ بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، بے بسی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 6:30 رہے تھے، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں سکینہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بڑوس والے رفیق چاچا مسجد جا رہے تھے۔ ہم دونوں کو یوں اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ روتے ہوئے بول لی، بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں سکینہ رو رہی تھی۔ چاچا رفیق نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چاچا رفیق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے آس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ موسم بہت سہانا تھا، مگر ہمارے سر پر اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو سبڑا کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں سکینہ کی نظر تو بہت کمزور تھی، مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈالو، دیکھو میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں سکینہ کی بات صحیح تھی۔ ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹرچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے سبرا زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں سکینہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی جوان بیٹی کو لے کر کس سے حساب مانگوں گی؟ سچ بتا، میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں سکینہ اپنی بیٹی کو جو چھوڑتے ہوئے بولی، اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا، تمہاری بیٹی کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی ہو، تمہاری بیٹی کو نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں سکینہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چاچا رفیق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے۔ یوں اماں سکینہ کی بیٹی سبرا کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج کیا جائے گا، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں سکینہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بدنصیب ماں ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب کو پتا چل گیا تھا کہ اماں سکینہ کے حافظ قرآن بیٹی سبرا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی بات تھی، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا۔ وہ راستہ جس پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اماں سکینہ کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے ہی کہوں گی، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی۔ اگر پتا ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خامہ خواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہیں کی تو خود کو گناہ گار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں سکینہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟
अम्मा सकीना, यह उसका वह कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी। वह कहती थी कि यही कुर्ता है जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक ताला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। अम्मा सकीना अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए मेरे लिए अम्मा सकीना की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वह कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालिदा ने जब अम्मा सकीना की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज खुले कि जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा सकीना की बेटी को गुस्ल दिया था। हालांकि वह हाफिज कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ यह मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्स करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्स करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज न आए तो उसके साथ अल्लाह ताला जो मामलात करता है वह मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं माँ सकीना का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में इसे ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए। इसलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जुबानें होती हैं, और तीर जैसी जुबानी महल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा सकीना को रोता देकर उसने जो फिक्रा कसा था वह इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाला था। बोली, क्या अम्मा सकीना, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाया दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसाई लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आई जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर अम्मा। सकीना ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी मरहूम बेटी के बारे में बकवास की, मेरी बेटी पाक और साफ थी। इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बकवास करते हुए अम्मा सकीना की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बता दी कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा सकीना का गुरूर और मान मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका यह भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा सकीना को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा सकीना के पास आकर बैठी तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखा था तुमने उस औरत ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटा, आजकल जमाना भी तो खराब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम खमाख्वाह शक मत करो अपनी बेटी के बारे में। अच्छा सोचो, उसकी मगफिरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा सकीना को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि यह राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा सकीना की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकलता था। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा सकीना की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माँ के साथ वह होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि सिबरा की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद सकीना बीवी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी। सकीना बीवी फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा सकीना, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान ही जाती। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वह थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं उसे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा सकीना बदजिद हो गई। मैंने वालिदा से इजाजत तलब की और अम्मा सकीना के साथ बोली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा सकीना ने सफेद चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थीं। अम्मा सकीना मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल करती। तुम्हें क्या लगता है बेटी, क्या मेरी बच्ची अल्लाह तबारक ताला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा सकीना के अजीबो गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था।
मगर मैं यह नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और कयामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जर्रा के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही सिब्रा की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा सकीना की हालत देखने वाली थी। टर्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पांव पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ। मैंने टर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे स्लीपर के नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से तर हो गई। मेरी टांगे कांपने लगी थी। तभी आंखें अंधेरे के साथ मानूस हुई तो मैंने वह मंजर देखा। इसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। सिब्रा की कब्र के इर्द गिर्द काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप सिब्रा की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा सकीना की तो नजर कमजोर थी। वह इससे पहले कि जाकर कब्र पर ढह जाती मैंने इसे रोक लिया। अम्मा सकीना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है, उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा सकीना कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से बयान करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे इन सांपों के बारे में पता चले। इसे रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था और मैं चाहती थी कि इसकी ये खुशफहमी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा सकीना को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा सकीना रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा सकीना की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वह ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वाहम इस कदर बढ़ जाता है कि इसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था। धूप खुली खुली सी थी, रोशनी तेज थी, इतनी वाज और साफ रोशनी थी कि अम्मा सकीना भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नजर सिब्रा की कब्र पर पड़ी और अम्मा सकीना ने भी उसी वक्त कब्र का नजारा कर लिया और फिर ढाले मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वह मुझे फिर से अल्लाह ताला के करीब कर देगा, मगर सवाल तो यह था कि एक हाफिज कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह जलील और रुसवा होकर अल्लाह तबारक ताला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा ना रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर माँ सकीना तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वह अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं आलिम साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा सकीना रोते पीटते मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, इससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सिब्रा की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वह इतने ज्यादा थे कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? यह तो कुदरत का निजाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा सकीना के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा सकीना पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। रोती हुई वह सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठा कर ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूँ। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज अल्लाह तबारक ताला की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ कर दे। अम्मा सकीना ने पहले अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज सस्ते दामों में दे दी तो कई बेवाह को मुफ्त में दे दी। अम्मा सकीना अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अब
अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा सकीना के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब गुरब्बा उठा कर ले गए थे। जाहिर है लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। अम्मा सकीना ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा सकीना हर रोज जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो बदस्तूर वहां पर सांप जमा ही रहे थे। यह देखकर अम्मा सकीना सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा सकीना के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वह लुटपुट गई थी। अब तो वह अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन अम्मा सकीना ने अपना जेवर भी बेच दी, जो कि इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी अमानत था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक ताला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वह बेच पाती। सड़क पर आ गई थी बिल्कुल। मगर इसके बावजूद भी आपको यह जानकर हैरान होगी कि सिबरा की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा सकीना को सुकून आया। तंग आकर अम्मा सकीना नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी ना खाती न पीती, बस अल्लाह तबारक ताला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, इसका अजाब कम हो जाए। अम्मा सकीना तो सुख कर कांटा हो गई थी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा कि तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि सिबरा नामी लड़की से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उठ गया। कहने लगी, मुझे फौरन सिबरा की माँ के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फौरन अम्मा सकीना के पास आई तो उसने अम्मा सकीना से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इसके कमरे में ले चले। अम्मा सकीना ये सुनना था कि वह उसे फौरन अपनी बेटी के कमरे में ले गई। सिबरा के कमरे में जाते ही उस लड़की ने उसका कमरा उल्ट पलट कर दिया। कुछ न मिला तो उसका बिस्तर उल्ट दिया। नीचे रखे मोबाइल फोन ने अम्मा सकीना को भी हैरान कर दिया था। यह तो एक स्मार्टफोन था। लड़की ने स्मार्टफोन लेकर खोला तो इसका मवाद देकर हम लोग भी हैरान रह गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा सकीना की बेटी ऐसी निकलेगी, चंद पैसे कमाने की खातिर अपने लिए जहन्नम खरीदने चल पड़ेगी। मगर अल्लाह तबारक ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बता दिया कि सिबरा सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीजें देखती थी, बल्कि वह लोगों में भी बुराई फैलाती थी। उसने अगरचे खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर इधर उधर ऐसा गंदी वीडियो दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद लिया। यह सिबरा की खुशकिस्मत थी कि उसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोट नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को नजर नहीं आता था तो उसे कोट लगाने की जरूरत महसूस ना हुई। यूं ही माँ से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। इस तरह उस लड़की ने सिबरा के फोन से वह सारी चीजें डिलीट कर दी। चुनांचे सिबरा की कब्र से सांप हट गई। उसकी माँ के दिल को भी करार आ गया। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या मसलत है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह तबारक ताला ने सिबरा पर कर्म ना किया होता तो उस लड़की को माँ के घर ना भेजता। यह तो सिबरा के गुनाहों को माफ करवाने का एक बहाना था। बस यही वह दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से इस्तकबार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज़े कुरान कभी भी अल्लाह तबारक ताला के कहर में नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक ताला उसे अपने कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। और वैसे भी उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं की थी और अल्लाह तबारक ताला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों को दूर करता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने माँ की दुआओं और सदके की वजह से उसकी कब्र से अजाब को टाल दिया था। प्यारे दोस्तों, हाफिज़े कुरान हो या फिर आलिम दीन हो, अगर वह अपनी जिंदगी अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारता है, तभी दुनिया और आखिरत में वह कामयाब होता है प्यारे दोस्तों। इसलिए कब्र का अजाब और आखिरत को याद करके अपना जिंदगी गुजारे। और अगर आपको वाक़या अच्छा लगा है तो पहले तो अपने फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।